Imagine a beautiful morning in Goa. The sun is rising, birds are chirping, and suddenly you hear a sound of chang chang with a bamboo stick. And that sound meant only one thing, that the baker had arrived. Yes, this beautiful memory is described by Lucio Rodriguez in A Baker from Goa, which is the very first part of the chapter Glimpses of India from the book First Flight. Yes, this beautiful memory we'll be reading today through this video. So hey, I'm Shweta, your English teacher, and I welcome you all to my YouTube channel. Let's get started with the chapter A Baker from Goa. Before starting the chapter, let's have a short introduction of the author, Lucio Rodriguez. Born in 1916 and died in 1973, Lucio Rodriguez was a renowned Goan Konkani essayist, professor, and folklorist who authored A Baker from Goa in the Glimpses of India series. लूशियो रोड्रिग्स, जिनका जन्म 1916 में हुआ था, बहुत जाने माने गोवन कॉन्करिंग एसेइस्ट थे, प्रोफेसर थे और फोकलोरिस्ट थे, जिन्होंने बेकर फ्रॉम गोवा मतलब एज एन ऑथर he told us about the baker from Goa in the series Glimpses of India. His writings, characterized by subtle humor and informal narration, often focused on Goan culture and traditions. उनकी जो ये writings है, मतलब वो वहाँ की जो normal जो language है उसको दिखाते हुए, उसके ऊपर focus करते हुए, किसके ऊपर, Goan culture और tradition को दिखाते हुए उन्होंने इस chapter को narrate किया है. He worked as a visiting professor of folklore at various universities and published works like Of Soil and Soul. तो उन्होंने as a visiting professor काम किया है कई यूनिवर्सिटीज में, और ये जो उनका famous work है Of Soil and Soul. So this was the introduction of author. Now let's proceed. Now let's have an introduction of the chapter. A Baker from Goa serves as nostalgic introduction to the deep-seated Portuguese influence on Goan culture. जो chapter Baker from Goa है वो एक याद है, एक याद करते हुए, उन दिनों को याद करते हुए, किन दिनों को, जो गोवन कल्चर पे जो इन्फ्लुएंस था पोर्टुगीज का, जब वहां पर पोर्टुगीज थे उनका जो इन्फ्लुएंस था, तो उसको याद करते हुए ये चैप्टर नरेट किया है. इट फोकसेस ऑन द ट्रेडिशनल विलेज बेकर नोन एज पेडर. वहां के जो ट्रेडिशनल बेकर थे उनको पेडर के नाम से जाना जाता था. Who remains a significant figure in Goan society even after the Portuguese have left. उनका इतना बहुत डीप इम्पैक्ट था सोसाइटी पे, जबकि पोर्टुगीज चले भी गए थे उसके बाद भी उनका काफी गहरा इम्पैक्ट था. The author reflects on how the eaters of loaves might have vanished, but the makers still exist, maintaining the age-old furnaces that have survived the test of time. Okay, so the author है वो क्या कहते हैं कि जो loaves of eaters of loaves है, इनके जो bread के और जो बेकर जो चीज़ें बनाते थे, उनके जो eaters थे जो उनको like करते थे, शायद वो चले गए हैं, लेकिन makers यानी बनाने वाले, यानी कौन, बेकर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. क्या करते हुए, अपनी उन्हीं फर्नेसेस को उसी तरह से कंटिन्यू करते हुए. फाइन. द स्टोरी डिस्क्राइब्स द बेकर्स यूनिक डेली रूटीन वेयर हिज अराइवल वाज मार्क्ड बाय द म्यूजिकल झैंग झैंग ऑफ हिज बैम्बू स्टफ. दिस इज स्टफ. This sound acted as an alarm for children who rushed out not for the loaves but for sweet ब्रेड बेंगल्स. तो ये जो स्टोरी है, ये जो लोग हैं वहाँ के गोवा के,
और जो बेकर्स हैं उनका डेली रूटीन बताती है कि बेकर्स सुबह सुबह आते हैं अपने बैम्बू स्टिक से झैंग झैंग का साउंड करते हुए, और लोगों की सुबह शुरू होती है उनके लाए हुए ब्रेड से। और बच्चे जो उनको बहुत पसंद करते हैं, झैंग झैंग की आवाज सुनते ही दौड़ पड़ते हैं उनकी तरफ, और उनको क्या पसंद है, उनको ब्रेड बेंगल्स बहुत पसंद है, जिसकी वजह से वो वेट करते हैं कि बेकर आए और हम ब्रेड बेंगल्स ले सकें। Bread was an essential part of every social fabric. Marriages required the sweet bread called bole, while Christmas and other festivals were incomplete without cake and bollinhas. तो एक पार्ट था ये उनके ट्रेडिशन का। कोई भी अगर पब्लिक गैदरिंग है, कोई भी सोशल चीज़ें हो रही हैं, कोई भी ट्रेडिशनल कुछ भी चल रहा है, तो बेकर्स के बिना वो इनकम्प्लीट था। हर इवेंट के लिए कुछ एक स्पेशल था जो बेकर्स के थ्रू ही बनाया जाता था। जैसे मैरिजेस में बॉल, और क्रिसमस और जो पार्टीज हैं उनके लिए केक या फिर बॉलिनहर्स। ट्रेडिशनली ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग फ्रॉक कॉल्ड कबई। जो बेकर्स थे उनकी ड्रेस डिफरेंट होती थी, बिल्कुल अलग होती थी औरों से, कि वो दूर से पहचाने जा सकते थे कि ये बेकर है, जिसको पेडर भी बोला जाता था। तो उनकी ड्रेस कैसी थी, एक लॉन्ग फ्रॉक काइंड ऑफ थी, और जिसको कबई बोला जाता था। The baker was a prosperous man, often identified by his plump physique, which served as a sign of his happy and well-fed family. तो जितनी भी bakers की families थी, they were ऑल वेल सेटल्ड। उनका काम इतना अच्छा था कि दे ऑल बिलोंग टू अ रिच फैमिली, और उनका जो प्लम्प फिजिक था ये पहचान थी उनकी हरी भरी जो फैमिली थी उसकी। प्लम्प फिजिक लाइक थोड़ा मोटे ताजे काइंड ऑफ, राइट। चलिए, okay, summary of the chapter. The chapter Baker from Goa is a nostalgic account of author's childhood memories in Goa. Author अपनी childhood memories को याद करते हुए बेकर फ्रॉम गोवा को बता रहे हैं, नरेट कर रहे हैं। Focusing on the traditional village baker, also known as Peder. The author recalls how baking was an important and inseparable part of Goan life, especially during the time when the Portuguese ruled the region. जब पोर्टुगीज ने जब रूल किया उस रीजन पे, तो वहां पर उस टाइम की मेमोरी को ऑथर जो है याद कर रही हैं। नोस्टैल्जिक यानी पुरानी यादों में खो जाना, उस चीज को याद कर रहे हैं जिनमें स्पेसिफाई किया उन्होंने कौन सी यादों को, स्पेशली बेकर जो पेडर के नाम से जाने जाते थे। सो इन दोज डेज द बेकर वुड विजिट द विलेज ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार बेकर आते थे, once in the morning and again in the evening. He would arrive with a bamboo stuff balanced on his shoulder, carrying baskets full of freshly baked bread. The jingling sound of the baker's arrival would excite the villagers, particularly the children who eagerly waited to buy bread. स्पेशली बेकर्स के बारे में चैप्टर है। तो बेकर्स सुबह सुबह आते थे, दिन में वो 2 बार आते थे, एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में। तो सुबह सुबह जब आते थे, सब बूढ़े हों बच्चे हों, सब उनका ईगरली वेट करते थे। स्पेशली बच्चे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि सुबह सुबह वो उनके लिए क्या लेके आते थे, ब्रेड बेंगल्स। ब्रेड हेल्ड ग्रेट कल्चर एंड सोशल इंपॉर्टेंस इन गोवन सोसाइटी। गोवन सोसाइटी में ब्रेड उनके कल्चर से कहीं ना कहीं रिलेट करती थी, तो वो उसका एक इनसेपरेबल पार्ट थी। इट वॉज अ मस्ट हैव आइटम फॉर स्पेशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग्स, फीस्ट, फेस्टिवल्स, हर चीज के लिए दैट वॉज very important. The baker's presence was essential during such events, and his products were considered a symbol of celebration and prosperity.
Even in daily life, bread was a staple food, showing how deeply rooted the baking tradition was in Goan culture. तो बेकर की जो प्रेजेंस थी वो बहुत बहुत ज़रूरी थी किसी भी तरह की गैदरिंग में, जहाँ पर अपनों का मिलना हो, आना जाना हो, खाना पीना हो, तो वहाँ पर बेकर्स का होना इट वॉज अ मस्ट फॉर देम. इवन जो उनका डेली रूटीन था वो भी बेकर्स की लाई हुई ब्रेड बेंगल्स, लोव्स, इनके बिना अधूरा था. The author also describes the baker's attire, which was quite unique. अब उनकी जो वेशभूषा थी वो भी बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट थी. He usually wore a long, loose shirt known as कबई. क्या कहा जाता था उनके अटायर को? कबई कहा जाता था. The baker's personality was equally notable. He was typically well built and prosperous, which reflected the success of his profession. Baking was a profitable business and bakers were respected members of society. तो वो prosperous family से belong करते थे और ये एक profitable business था society में. Overall, the chapter highlights the rich cultural heritage of Goa and emphasizes how traditional occupations like baking played a significant role in shaping community life. Like गोवा की अगर हम बात करें उस टाइम की, तो बेकर्स का होना was very important और उनके अपना एक अलग ही रोल था सोसाइटी में. Through vivid descriptions and personal memories, the author presents a warm and lively pictures of bygone era. ये इन सब के थ्रू ऑथर जो है अपनी मेमोरीज को बता रहे हैं बड़े ही ब्यूटीफुल टाइप से. वो जो एक टाइम चला गया है उसको बड़ा ब्यूटीफुली उन्होंने प्रेजेंट किया है थ्रू दिस चैप्टर, शोइंग हाउ समथिंग एज सिंपल एज ब्रेड कुड ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी. कि कितनी छोटी सी, कितनी सिंपल सी चीज लाइक एक ब्रेड जैसी चीज भी लोगों को कितना करीब ला सकती है और कितना उनके लिए वो इम्पोर्टेंट था और कितना एक जरूरी पार्ट बन जाता है उनकी लाइफ का. फाइन. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. अब चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ते हैं लाइन टू लाइन. सो आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज ओल्ड Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. तो हमारे बड़े सुने जाते हैं याद करते हुए उन पुराने दिनों को जब पोर्टुगीज हुआ करते थे और जब पोर्टुगीज और उनके फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड हुआ करते थे. उस समय को कितनी बार मैंने सुना है कि हमारे बड़े याद करते हैं उन दिनों को. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. जो loaves eaters थे, just 1 minute. Okay, sorry. What happened? पेज चेंज हो गया. Okay. So वो जो ईटर्स ऑफ लॉव्स थे शायद वो चले गए हैं, बट मेकर्स आज भी हैं. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. आज भी हमारे बीच में हैं जो क्या करते हैं, those who mix, mold and जो क्या करते हैं, लोव्स को बेक करते हैं, उनको बनाते हैं, जो उनका मटेरियल रेडी करते हैं. ठीक है, कैसे जैसे जैसे प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें करते हैं, फिर उनको बेक करते हैं, तब हमें क्या मिलते हैं, फ्रेश ब्रेड्स मिलते हैं. तो वो आज भी हमारे बीच में हैं. Those age-old, time-tested furnaces still exist. वो पुरानी फर्नेसेस होती हैं बेटा, भट्टियाँ, मतलब जिन पे वो जो हम बेक करते हैं. आजकल तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बेक करने के लिए. ठीक है, पहले एक प्रॉपर जो ट्रेडिशनल भट्टियाँ होती थी उसमें बेक किया जाता था, तो उन्हीं की बात करें कि वो आज भी हैं. द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. मीन्स
उनमें जो आग जलती है वो आज भी गायब नहीं हुई है, मतलब हाँ आज भी वो ट्रेडिशन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे आग जलती रहती है, डजंट मीन। द थिंग इज कि हाँ आज भी वो ट्रेडिशन है, वो भी खत्म नहीं हुआ है। फाइन। द थर्ड and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। आज भी कुछ कुछ जगह पर वो जो बैम्बू से वो ठड करते हुए जो जिंगलिंग करते हुए वो आते हैं, वो आज भी बहुत सारी जगह पर देखा जा सकता है। Maybe the father is not alive but the son still carries the family profession। हो सकता है कि जो पहले थे, मतलब उनके जो बच्चे हैं वो आज भी उस ट्रेडिशन में है। हो सकता है उनके फादर जिन्होंने कभी इस बिजनेस को शुरू किया था, या उनके जो भी एंसेस्टर्स थे वो नहीं हो, लेकिन हाँ जो जनरेशन टू जनरेशन जो चलती आ रही है वो आज भी अपने उसी ट्रेडिशनल जो उनका ऑक्यूपेशन है उसी में है, वो आज भी उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। These bakers are even today known as पेडर इन गोवा, और इनको आज भी गोवा में पेडर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पेडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पेडर कौन है? पेडर है बेकर। बेकर को पेडर के नाम से जाना जाता है। उनकी जो ड्रेस है उसको क्या कहा जाता है बेटा? उसको कवई कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें याद रखने वाली हैं। चलिए, okay, during our childhood in Goa the baker used to be our friend। हम जब बच्चे थे, हमारे बचपन में जब हम गोवा में थे तो बेकर हमारे फ्रेंड हुआ करते थे। कंपेनियन एंड गाइड, वो हमारे फ्रेंड थे, हमारे साथी थे और हमारे गाइड भी थे। He used to come at least twice a day, कम से कम 2 बार दिन में वो आते थे। Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket। कब? जब मॉर्निंग में आते थे, सुबह सुबह जब फ्रेश ब्रेड लेकर के आते थे, और दोबारा कब आते थे? जब वो उनकी बास्केट खाली हो जाती थी तो फिर वो वापस आते थे। मतलब ऐसे जाते हुए दे दिया, उसके बाद शाम को वो वापस आते थे। ओके, The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। तो जो उनके बैम्बू की जो आवाज होती थी वो ही हमें जगाता था। उस आवाज से हम जगते थे और उठते ही हम भाग पड़ते थे उसको ग्रीट करने के लिए, उससे मिलने के लिए। Why was it so? ऐसा क्यों था? Was it for the loaf? क्या लॉफ के लिए, जो ब्रेड लॉफ्स थे उनके लिए? Not at all, बिल्कुल भी नहीं। The loaves were brought by some Peskin or Bestin, the maid servant of the house। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully। आपको क्या लगता है कि जो ब्रेड लॉव्स वो लेके आते थे उसके लिए हम दौड़ते थे? नहीं, वो तो मेड सर्वेंट थी, उनके लिए तो पेस्किन और बेस्टिन वो ले लेती थी। हम क्या करते थे? हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए थे ब्रेड बेंगल्स, जो हम खुद चूज करते थे। Sometimes it was sweet bread of special make, और कभी कभी स्पेशली वो स्वीट ब्रेड बना करके लाते थे। फाइन। The baker make his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo stuff। Here on, this is stuff। सो जो बेकर्स थे वो अपने बैम्बू से, मतलब वो अपने बैम्बू से ना अलग ही आवाज करते थे। दैट वाज कॉल्ड झैंग झैंग। वो आवाज करते हुए जो वो आते थे वो उनकी एंट्री को बहुत स्पेशल बनाता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ बास्केट को सपोर्ट करते हुए, सिर पे बास्केट रखी हुई है तो एक हाथ उसको सपोर्ट कर रहा है, एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। जैसा कि आप पिक्चर में देखोगे, एक हाथ से उन्होंने जो सिर पे जो टोकरी रखी हुई है उसको पकड़ा हुआ है, और दूसरा जो है उसमें बैम्बू है जिसको वो ऐसे आवाज करते हुए नीचे जमीन पे मारते हुए आवाज करते हुए आते थे।
He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. और वो क्या करते थे, हम जो घर की लेडीज थी उनको गुड मॉर्निंग कह करके अपनी वो बास्केट को नीचे रखते थे. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. मतलब हमें हल्की फुल्की डांट के साथ थोड़ा दूर कर दिया जाता था और वो जो loaves थे वो सर्वेंट्स को हैंड ओवर कर दिए जाते थे. बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट. हम बेंच पे चढ़ते थे, या जैसे बाहर देखो ये बनी हुई है ना इस तरह से, वो कुछ जैसे छोटी छोटी होती है ना, तो उस पे चढ़ के हम उस टोकरी में झांकते थे. समहाउ, कैसे मतलब कैसे कैसे कोशिश करके हम उस टोकरी में झांकते थे. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली. और बिल्कुल हमें कुछ नहीं पड़ी थी कि हम सुबह सुबह उठ के ब्रश करें या हम मुंह धो लें. बस हमने आवाज सुनी, हम उठे और दौड़ पड़े कि बेकर इज हियर. एंड व्हाई शुड वी, और ऐसा क्यों, हम क्यों ऐसा करते थे. Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? कौन जाके आम की लकड़ी तोड़ के लाए ब्रश करने के लिए. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये क्यों ही जरूरी थी. द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, टाइगर भी तो अपने टीथ कभी ब्रश नहीं करता है. तो हमें क्या पड़ी थी कि हम जाएं आम की लकड़ी लाएं. अभी तो टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, तो उस टाइम पे दातुन होती थी. आपके पेरेंट्स भी, बहुत सारे लोग अभी भी करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो अभी भी दातुन यूज करते हैं. तो वो आम की या नीम की लकड़ी, मोस्टली बबूल की लकड़ी, इस तरह से कुछ वो यूज करते हैं. तो उस टाइम पे तो ऐसा ही था कि टूथब्रश टूथपेस्ट का तो नहीं था. तो मतलब कौन सुबह सुबह जाए लकड़ी तोड़े फिर दातुन करे. क्यों, टाइगर है, टाइगर भी तो अपने टीथ ब्रश नहीं करता था, तो हमारे लिए क्यों जरूरी था. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. जब गरम गरम चाय पी जाएगी तो ऑब्वियसली मुंह अपने आप ही साफ हो जाएगा. और ठीक था, काम चल रहा था उनका. ओके, अब इट डजंट मीन कि आपको नहीं करना है ना. अब ये लॉजिक अपने घर पे मत देने लग जाना कि टाइगर अपने दांतों को ब्रश नहीं करता है तो हम क्यों करें. फाइन, तो आप लोगों के लिए इट इज मस्ट. चलिए लेट्स कंटिन्यू. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बॉल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट loses its charm without bread. मैरिज गिफ्ट बिल्कुल मीनिंगलेस थे जब तक उनमें क्या ना हो, जब तक उनमें बॉल ना हो जो इनके थ्रू, बेकर के थ्रू बनाई जाती थी. और कोई भी पार्टी या कोई भी फीस्ट मीनिंगलेस था, उसमें कुछ मजा नहीं था जब तक वहां पर ब्रेड नहीं हो. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. मतलब इससे ज्यादा तो क्या ही बताएं कि कितना इम्पोर्टेंट था एक बेकर का होना उस गांव में, उस जगह पर होना. मतलब एक बेकर का होना हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट था. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasions of her daughter's engagement. जो लेडीज होती थी वो अपनी बेटे की शादी पर क्या बनाती थी, सैंडविचेस बनाती थी. तो सैंडविचेस भी तो तब भी बनेंगे जब बेकर ब्रेड लेकर आएंगे. फाइन. Cakes and bolihans are a must for Christmas as well as other festivals. केक और bolihans क्रिसमस के लिए स्पेशली और भी कुछ फेस्टिवल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे. Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. मतलब गांव में बेकर का होना, उनकी फर्नेसेस का होना was a must thing for them. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. उनकी जो ड्रेस थी, पेक्यूलियर होता है बेटा अजीब थोड़ा सा, है ना. तो बिल्कुल अजीब सी एक अलग सी ड्रेस थी जिसको क्या कहा जाता था, कबई कहा जाता था. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. सिंगल पीस, एक सिंगल ही कपड़े से सीधा लंबा एक लॉन्ग फ्रॉक कहाँ तक, नीज तक होता था. इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ once and
लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। तो फिर क्या है, या तो फिर और एक क्या था कि शर्ट होती थी और उसके नीचे हाफ पैंट। हाफ पैंट मीन्स जो बिल्कुल हाफ होती है, बिल्कुल हाफ से मैं क्या बताऊं, जो मतलब हाफ पैंट जो नीज तक होती है उससे लंबी, और बिल्कुल जो एंकल्स तक होती है उससे छोटी, जिसको हम आज के टाइम में कैपरी भी बोलते हैं। सो दैट काइंड ऑफ पैंट दे वुड वेयर। इवन टुडे एनीवन वुड वेयर्स अ हाफ पैंट which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a peddler। आज भी अगर कोई ऐसा कुछ पहनता है कि जिसकी लेंथ पैंट से कम है और हाफ पैंट से ज्यादा है, उसको ये कमेंट मिलता है कि देखो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि पेडर। The baker usually collected his bills at the end of the month। मंथ के एंड में बिल्स कलेक्ट होते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और जो मंथली जो लिखा जाता था, आज हमने क्या लिया, इस डेट को क्या आया है, कितनी ब्रेड आई है, कितने लोव्स आए, वो किसी भी दीवार पर पेंसिल से लिख दिया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। उस टाइम पे बेकिंग बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसकी फैमिली को कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता था। दे वर गेटिंग वेल सेटल्ड, दे वर प्रॉस्परस। He, his family and his servants always looked happy and prosperous। बेकर, उनकी फैमिली, इवन उनके नौकर भी हमेशा दूर से ही prosperous, rich नजर आते थे। Their plump physique was an open testimony to this। plump physique like मोटा होना, तो उनका जो plump physique था वो बिल्कुल सबूत था इस चीज का। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर। तो आज भी अगर कोई कटहल जैसे अपीयरेंस में कोई पर्सन नजर आता है तो उसको क्या, किससे कंपेयर किया जाता है, बेकर से कंपेयर किया जाता है। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर and I hope सभी को चैप्टर समझ में आया हो। and thank you so much for watching। if you like the video, just hit the like button, comment, share with your friend and do subscribe the channel। thank you।